پریز دی لارڈ. آئیے گیت سے اس عبادت کی شروعات کریں. جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ, کپیوں میں تم تیل بھرو مشالے لو سنبھال. جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ, کپیوں میں تم تیل بھرو مشالے لو سنبھال. آدھی رات اب ہو چکی اور ہے آواز وہ آ گیا. آدھی رات اب ہو چکی اور ہے آواز وہ آ گیا. چھوڑ دو اب سستی, چھوڑ دو اب سستی, کمر اپنی کس کر کرو استقبال. کمر اپنی کس کر کرو استقبال. جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ, کپیوں میں تم تیل بھرو مشالے لو سنبھال. ہر جگہ لڑائی اور جھگڑے سنو سب افواہیں. ہر جگہ لڑائی اور جھگڑے سنو سب افواہیں. آنکھیں کھولو, آنکھیں کھولو, کال مری سب دیکھو بھائیو آتے ہیں بوچال. کال مری سب دیکھو بھائیو آتے ہیں بوچال. جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ, کپیوں میں تم تیل بھرو مشالے لو سنبھال. قوموں کو تکلیف اب ہوتی آتی ہے مصیبت. قوموں کو تکلیف اب ہوتی آتی ہے مصیبت. قوتیں بھی ہلتی, قوتیں بھی ہلتی, آفتوں کے ڈر سے ہوا برا حال. کہ آفتوں کے ڈر سے ہوا برا حال. جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ, کپیوں میں تم تیل بھرو مشالے لو سنبھال. یہودی بھی واپس آتے قوموں سے نکل کر. یہودی بھی واپس آتے قوموں سے نکل کر. مصیبت اٹھا کے, مصیبت اٹھا کے, خبر دیتے ہیں کہ آیا رب کا سال. خبر دیتے ہیں کہ آیا رب کا سال. جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ, کپیوں میں تم تیل بھرو مشالے لو سنبھال. اور دروازہ جب بند ہو جائے گا پھر موقع نہ پاؤ گے. دروازہ جب بند ہو جائے گا پھر موقع نہ پاؤ گے. توبہ کرو, توبہ کرو, یشوع پر تکیہ کرو اور ہو جاؤ تیار. یشوع پر تکیہ کرو اور ہو جاؤ تیار. جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ, کپیوں میں تم تیل بھرو مشالے لو سنبھال. جے مسیح کی. خداوند یشوع مسیح کے سلامتی بخش نام میں اس صبح میں ہم آپ کو اس خاص عبادت میں خوش آمدید کہتے ہیں. مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں ان سبھی لوگوں کو جنہوں نے اب تک اپنے گھروں میں رہ کر کے سلامتی کا جیون گزارا ہے اور اپنی زندگی کو خداوند کے ہاتھوں میں سنجو کر رکھا ہے. اور آج میں آپ سے خدا کے کلام پر آدھارت ہوتے ہوئے ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے, جبکہ ساری دنیا میں اس کووڈ-19 کی وجہ سے کوہرام مچا ہوا ہے, لیکن میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں, جو لوگ خداوند یشوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ سلامتی میں زندگی کو گزارتے ہیں, سلامتی میں اپنے جیون کو گزارنے والے ہو سکتے ہیں. تو میرا آج اس کلام کے معرفت سے اعلان کرنا یہ ہے کہ آپ خداوند یشوع مسیح کے ساتھ بنے رہیے. جہاں بھی رہیے, جس گھر میں رہیے, دیش ہندوستان میں رہیے یا دیگر ملکوں کے اندر رہیے, میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں, گھروں میں رہ کر یشوع مسیح کے ساتھ بنے رہیے. اسٹے ود جیسس.
ये आज के कलाम का विषय है और मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदावन यीशु मसीह के साथ बने रहने में आपकी सलामती भी है और आपकी खुशनुदी भी है। आपकी जिंदगी मसरत से भरी रहेगी, आपका जीवन आनंद से भरा रहेगा, आपकी जिंदगी बहुतों से अलग दिखाई पड़ेगी। तब जबकि दुनिया परेशान है, तबाही में अपने आप को झोंक चुकी है, खुदा के लोगों, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान करने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए मुकद्दस कलाम रखा है आपके घरों पर। शायद बहुत दिनों से आपने उसे पढ़ा भी नहीं होगा, शायद बहुत दिनों से जो आपको इस कलाम को तरजीह देनी चाहिए वो नहीं दी। ये आपके घर के किसी ताक के ऊपर रखा हुआ था और धूल जम रही थी। आपने कलीसिया को महत्व नहीं दिया, आपने चर्चेस को महत्व नहीं दिया। कलीसिया के पास बान लोग, कलीसिया में खिदमत करने वाले लोग पुकारते रहे, बुलाते रहे, लेकिन आपने तरजीह नहीं दी। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं जब आप अपने घरों में बंद हैं, तबाहाली का आलम चारों तरफ है, आपको खुद भी अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं ये वबा हमको भी छू लेगी, हमको भी अपनी गिरफ्तारी में ले लेगी। मेरा हश्र क्या होगा, मेरे घर वालों का हश्र क्या होगा? क्या जब सारी चीजें नॉर्मलाइज होंगी उस समय क्या हम किसी अजीज से मुलाकात कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? आज शक और शुबा में जिंदगियां गुजर रही हैं, लोगों का ईमान खत्म हो गया है, लोगों के ईमान में कमजोरी आ गई है। मैं खुदा के खादिम होने के नाते आपकी जिंदगी के अंदर ईमान पैदा करना चाहता हूं। आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह में बने रहिए। खुदावंद यीशु मसीह वो है जिसने आसमान और जमीन की रचना की है। खुदावंद यीशु मसीह वो है जो आपकी जिंदगी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। मैंने लिखा है खुदा के कलाम के बमुजिब लिखा है मैंने, नाउ वेदर ही इज विजिबल और इनविजिबल, स्टे ऑलवेज विद जीसस। वेदर ही इज विजिबल, बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह को देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के अंदर उसको जिंदा पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। आज खुदा जब आपके घरों में होकर आपसे मुखातिब होना चाहता है, आपसे हम कलाम होना चाहता है, आपसे आपके बगल में बैठकर आपको तसल्ली देना चाहता है। उसके साथ बने रहिए, उसके साथ अपने आप का एक रिश्ता बना लीजिए। जो रिश्ता सालों साल से टूटा रहा, जो रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह की पहल के बावजूद आपने उसको कायम नहीं किया, आप अब भी हो सकता है अपनी खुमारी के अंदर, अपने ही घमंड के अंदर, अपने ही जोम और तैश के अंदर जिंदगी गुजार रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं ये जिंदगी नश्वर है, ये जिंदगी खाक में मिलने वाली है, एक दिन खत्म हो जाएगी। कुछ ही समय बाकी बचा है, खुदावंद यीशु मसीह की आमद निकट है। जैसा कि गीत में गाया गया, निशानात इस ओर इशारा कर रहे हैं, यीशु शीघ्र आने वाला है, यीशु अपने राज को शीघ्र स्थापित करने वाला है। इसलिए हम पर कितनी जिम्मेदारी है, ये हमारे लिए कितना लाजमी हो जाता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह का साथ जीवन बिताएं। Now whether he is visible or invisible, stay always with Jesus. Then only you will be safe and with abundance of material and spiritual blessings. तब आप खुदा की भौतिक और आत्मिक रूहानी सभी बरकतों से वाबस्ता हो जाएंगे। उनके वो बरकतें चाहे जिस्मानी एतबार की हो, चाहे रूहानी एतबार की हो, आपकी जिंदगी के साथ जुड़ जाएंगी। आज घरों में रहते हुए समझ में नहीं आ रहा कि ये बरकतें कैसे मिलेंगी, इन हालात के ऊपर प्रबल कैसे होंगे, वो आशीषें जो खुदा ने हमारे लिए संजो कर रखी हैं वो कैसे मिलेगी। स्टे विद जीसस एट होम, स्टे विद जीसस। This will encourage everybody to become a grateful, to be grateful.
Once again, I would like to say, be grateful and thankful. एहसान मंद हो जाइए, शुक्रगुजार हो जाइए. Be grateful and thankful with humble hearted. अपनी हलीमी की जिंदगी के साथ, अपने हृदय की कमजोरी के साथ, without boasting in each and every circumstances. हर एक परिस्थिति के अंदर खुदा के शुक्रगुजारी हुई है. जब घरों के अंदर बंद हैं, जब घरों की सीमाएं आपको लांघने का इख्तियार नहीं है, भयभीत हैं, खुदा के शुक्रगुजार होइए. आपको खुदा ने घर दिया है. शायद छोटा सा घर होगा, शायद बहुत बड़ा घर होगा. हर एक जन अपने अंदर एक तन्हाई को महसूस कर रहा है. मैं खुदा के खादिम होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं, खुदावन में बने रहिए. खुदा ने कहा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय के 21वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने फिर उनसे कहा. इसका मतलब ऐसा लग रहा है वो कई बार कहता रहा है, बार बार कहता रहा है, गुहार लगाता रहा है, विनती करता रहा है, चिल्लाता रहा है, लेकिन इसकी लोगों ने सुनना ना चाहिए. आज घरों में रहते हुए लोगों, तुमसे खुदा फिर कह रहा है, खुदावंद यीशु मसीह फिर कह रहा है. और उसने कहा है, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले. घरों में रहने वालों, सड़क पर रहने वालों, अस्पतालों में रहने वालों, दुनिया की इमरजेंसी की सेवाओं को देने वालों, खुदावंद का कलाम तुमसे आज ये कह रहा है, तुम्हें शांति मिले. दुनिया की परिस्थितियां तुमको शांति नहीं दे रही है, शांति लुट गई है, खत्म हो गई है, लेकिन खुदा कहता है तुम्हें शांति मिले. ये इसलिए कह रहा है, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं. खुदा ने हमको ये शर्फ बख्शा है कि हम भी खुदा के इस अहकाम का पालन करें, खुदा के इस बोल का फरमान दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दें कि तुम्हें शांति मिले. दुनिया के कोने कोने के लोगों, हर देश में रहने वाले लोगों, खुदावंद यीशु मसीह की ओर से तुमको शांति मिले. ये शांति कैसे मिलेगी? ये इत्मीनान कैसे मिलेगा? ये तसल्ली कैसे मिलेगी? खुदा के कलाम उसके 22वें पद में लिखा हुआ है, ये कहकर उसने उन पर फूंका, ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो. उसने कहा, पवित्र आत्मा लो. ये पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से दिया गया एक सहायक है. ये पवित्र आत्मा और कोई नहीं, ये परमेश्वर का आत्मा है. ये पवित्र आत्मा और कोई नहीं, ये मसीह यीशु का आत्मा है. मसीह यीशु इस दुनिया में अपनी खिदमत को गुजारने के बाद जब स्वर्ग पर जा रहे थे, उन्होंने कहा, मैं तुमको हरगिज यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुमको हरगिज तन्हा अकेला ना छोड़ूंगा, मैं एक मददगार तुमको दे रहा हूं. चेलों से कहा, मैं मददगार दे रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो. अब तक मैं तुम्हारी हिदायत करता रहा, अब तक मैं तुम्हारी मदद करता रहा, अब तक मैं तुम्हारी सहायता करता रहा, अब तक तुम्हारी परेशानियों में, अब तुम्हारी मुफलिसी के अंदर मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे हमराह खड़ा रहा, तुम्हारे साथ साथ खड़ा रहा. अब मैं कह रहा हूं, मेरा ही आत्मा जिंदगी भर तुम्हारी अगुवाई करेगा और तुम्हारी सहायता करेगा. ये कहकर उसने उनको उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो. इसके बाद खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जिस तरीके से आज भी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है. खुदा का कलाम तो हमसे बार बार बातचीत करता है, खुदा के लोग बार बार बातचीत करते हैं. हम खुदा के कलाम को आज 12 इंटरनेट के माध्यम से सुन तो रहे हैं, लेकिन जरा सोच कर देखिए, अपनी जिंदगी पर गौर करके देखिए, कितना उस पर अमल कर रहे हैं. हाँ, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, हर एक चीज बहुत अच्छी, बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत अच्छा प्रचार किया, बहुत अच्छी इबादत हुई, लेकिन जरा गौर कर करके देखिए, आपने कितना उसे कबूल किया है. जरा गौर करके देखिए, कितना आज इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर पेवस्त होने का मौका दिया है. ये ऐसे ही उस समय भी होता था.
جب یشوع مسیح اس دنیا کے اندر تھا تب بھی ایسا ہی ہوتا تھا. لکھا ہے خدا کے کلام میں یوحنا رچیت سماچار اس کے 21ویں ادھیائے کے 2 اور 3 پد کے اندر یہاں پر اس طریقے سے لکھا ہے, شمعون پترس اور تھوما جو ددمس کہلاتا ہے اور غلیل کے کانا نگر کا نتنیل اور زبدی کے پتر اور اس کے چیلوں میں سے 2 اور جن اکٹھے تھے. یہ 7 لوگ اکٹھے تھے. پترس بڑے بڑے دعوے کرنے والا, میں مر جاؤں گا لیکن تجھے چھوڑوں گا نہیں. آج بھی تو دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگ, ہم یشوع تیرے ساتھ رہیں گے, ہم یشوع کے اپاسک ہیں, ہم یشوع کے ماننے والے ہیں. لیکن آئے میرے عزیز لوگوں, ذرا غور تو کرو, ایسے نعرے لگانے والے, ایسے دعوے کرنے والے, کیا تم حقیقت میں یشوع کے آگیا کا پالن کر رہے ہو, یشوع کی بتائی ہوئی زندگی پر چل رہے ہو؟ بڑے بڑے باتیں کرنے والے لوگوں, گھروں کے اندر قید لوگوں, میں تم سے کہنا چاہتا ہوں, پترس بھی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا. اس نے کہہ دیا میں مرنے کو تیار ہوں, میں مر جاؤں گا, تجھے نہیں چھوڑوں گا. یشوع مسیح نے کیا کہا؟ اے پترس, آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک کہ تو 3 بار میرا انکار نہ کر لے. میں نے کہا, شروعات میں میں نے کہا, this will encourage everybody to become a grateful, thankful and humble hearted without boasting. Without boasting. لیکن یہاں پر پترس بڑے بولے پن کا شکار ہو گیا, نہیں چھوڑوں گا. یہی تو کر رہے ہیں ہم لوگ, یہی تو کہہ رہے ہیں آج کل. یشوع 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 کو کوئی کچھ نہ کہے لیکن زندگی میں گہر نہیں کرتے. پترس نے کہا 3 پد کے اندر, اور شمعون پترس نے ان سے کہا میں مچھلی پکڑنے کو جاتا ہوں, میں مچھلی پکڑنے کو جاتا ہوں. انہوں نے اس سے کہا, باقی 6 لوگوں نے کیا کہا؟ ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں. یشوع مسیح نے کہا تھا پوتر آتما لو, میں اپنی شانتی تم کو دے رہا ہوں, میں زمانے کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا. یشوع مسیح نے کہا ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہوتے ہیں لیکن میرے طالب کسی بھی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. یشوع مسیح نے کہا آسمان کے پرندوں کو دیکھو جو نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں, پھر بھی ان کا سورگی پتا ان کو کھانے کے لیے مہیا کراتا ہے. میدان کی گھاس کو دیکھو کس طریقے سے پرمیشور ان کی رکھوالی کرتا ہے. سوسن کے پھولوں کو دیکھو, اور ان کے لیے بھی لکھا ہے کہ سلیمان بھی اپنے سارے ویبھوں میں ان کے سامان وسطر پہنے ہوئے نہیں تھا. سلیمان راجا, ساری شان اور شوکت اس کے پاس تھی لیکن پھر بھی وسطر پہنے ہوئے نہیں تھا. خدا کا کلام کہہ رہا ہے میں بیٹا تمہاری چنتا کرتا ہوں. میں آج بھی خدا کے کلام پر آدھارت ہو کر خدا کے خادم ہونے کے ناطے دنیا کے سبھی لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں, خدا آپ کی چنتا کرتا ہے. اگر آج آپ اپنے گھروں کے اندر قید ہونے کے باوجود بھی زندہ ہو, خوشحال ہو, بہتر کھا پی رہے ہو, اس کی وجہ نہیں کہ آپ نے بہت اچھا کما لیا ہے, بہت اچھا سرکشت اپنے گھر میں رکھ لیا ہے, آپ کے پاس ساری ویوستھائیں ہیں. خدا باپ چٹکی بجاتے ہوئے ان چیزوں کو دور کر دینا بھی جانتا ہے. اس لیے کامل اعتبار رکھو اپنے زندہ خدا پر, کامل ایمان رکھو اپنے زندہ خداوند یشوع مسیح پر. اور انہوں نے کیا کیا؟ کہنا ہم مچھلی پکڑنے جاتے ہیں, اور چیلوں نے کہا ہم بھی تیرے ساتھ چلتے. اور آگے لکھا ہے سو وہ نکل کر ناؤ پر چڑھے پرنتو اس رات کچھ نہ پکڑا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پترس اور یہ 6 چیلے ساتھ میں کچھ نہ پکڑ پائے, کچھ نہیں پکڑ پائے. اگر ہم کو اپنے اوپر گھمنڈ ہے, اگر ہم بہت زیادہ جوشیلے انداز میں خداوند یشوع مسیح کو پرسن کرنے کے لیے بڑ بولے پن کے اندر بہت بڑی بڑی بات بولتے ہیں, خداوند ہمارے گھمنڈ کو توڑنا جانتا ہے. رات بھر محنت کرو گے, دن بھر محنت کرو گے, مہینے بھر پر محنت کرو گے, کچھ بھی نہ پکڑ پاؤ گے, کچھ بھی نہیں پکڑ پاؤ گے. اور لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر
सवेरे होते होते यीशु मसीह किनारे पर आ मौजूद हुआ और उसने कहा, अपने उसी प्यार का इजहार किया, कहने लगे, बालको कुछ पकड़ा तुमने, कुछ है तुम्हारे पास? उसने कहा, रात भर मेहनत करते कुछ भी नहीं पकड़ पाए। उसने कहा, दाहिनी ओर जाल डालो तो पकड़ोगे, दाहिनी ओर जाल डालो तो पकड़ोगे। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, उन्होंने दाहिनी ओर जाल डाला और मछलियों की बहुतायत के कारण जाल खींच ना सके। तो यूहन्ना ने कहा, ये तो प्रभु है, ये तो गुरु है। पतरस तुरंत ही पानी में कूद गया और तब चेले उस नाव को जिसमें मछलियां थी खींच करके बाहर ले आए। लिखा हुआ है उसके आगे 9वें पद के अंदर, जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने, ध्यान देने वाली बात है, जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। खुदा झूठ नहीं बोलता, खुदा सत्य का सरचश्मा है। वो जो कह देता है हां और आमीन के साथ पूरा होता है। आप में से बहुत से घरों की गवाहियां होंगी कि घर में कुछ नहीं था, तबाहाली का सा जीवन था, फिर भी कोयले पर रखी हुई मछली और रोटी वहां मौजूद थी। आज तक जिंदा है तो इसलिए क्योंकि खुदा ने आपके लिए भोजन की व्यवस्था की है। आज हम जिंदा है क्योंकि इसलिए खुदा ने हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की है, हमारी सेहत का ख्याल रखा है। खुदा अपने वायदे में सच्चा, मैं झूठ नहीं बोलता, अपनी बातों में अदल बदल नहीं करता। लेकिन पतरस नहीं समझ पाया। पतरस कहने लगा, नहीं खुदा बाप, तुम ये नहीं कर पाओगे, रोटी की व्यवस्था तो हमको करनी पड़ेगी। मछली के शिकार करने के बाद अपने घर को पालने की व्यवस्था तो हमको करनी पड़ेगी। लेकिन हकीकत यह है, हम अपने सारे जोम और तैश में भी अपने घर की व्यवस्था नहीं कर सकते। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो, आओ और भोजन करो। आज मैं भी आपसे इस तंग हाली और परेशान हाली और कोविड-19 के बीच में कहना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह पर एतबार कीजिए। स्टे विद जीसस, यीशु के साथ बने रहिए। दुनिया वाले क्या कहते हैं परवाह मत कीजिए, यीशु मसीह के साथ बने रहिए। आपके लिए भोजन की व्यवस्था होगी, उसी जगह पर होगी। खुदा वो है जो आसमान के झरोखों को खोलता और मन्ना बरसाने की ताकत रखता है, जमीन के चट्टान को फाड़ता और आपके लिए पानी बहाने की ताकत रखता है। खुदा वो है जिसने एलिया को रोटी खिलाई, गोश्त खिलाया, आपको भी खिलाएगा, आपको भी खिलाएगा। मैंने लिखा है, we are very much concerned about our daily needs in spite of the fact God has guaranteed us that He Himself will take care of everything. He Himself will take care of everything. We should involve ourselves to do His assigned work. इस समय जो खुदा ने जिम्मेदारी हमको दी है, कलाम की, दुआ की इजाजत दी है, अपने घरों में रहकर कलाम पढ़िए, दुआ कीजिए, यीशु से रिफाकत रखिए। किसी को भविष्य नहीं मालूम, यीशु को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा आपके साथ, कल क्या होगा आपके मोहल्ले में, कल क्या होगा आपके देश के अंदर, कल क्या होगा आपकी दुनिया के अंदर। यीशु को मालूम है। डू हिज असाइन्ड वर्क, जो उसने काम आपको दिया करने को दीजिए। बट वी आर सेटिस्फाइंग आवरसेल्व्स एंड फीडिंग आवर बॉडीज, नॉट चर्च एज हिज बॉडी। हमको खुदा की कलीसिया को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। उसकी कलीसिया को मजबूत बनाइए, उसके लोगों में मजबूती डालने का ऐलान कर दीजिए।
जब खुदावंद यीशु मसीह पतरस के इस हाल को समझ गया, ये नहीं समझ रहा है, ये बड़ी बड़ी बातें करता, आजकल के लोगों की तरह बड़ी बड़ी बातें वो कर रहा था। लिखा हुआ है यूहन्ना उसके 21 अध्याय उसके 15वें 16वें और 17वें पद के अंदर, भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उससे कहा, हां प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्रीत रखता हूं। आप भी तो कहते होगे ना, हाँ यीशु हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, बाइबल है, ताक पर रखी, क्या हुआ, धूल जम गई तो क्या हुआ, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं। उसने उनसे कहा, मेरी मेमनों को चरा। 16 पद में लिखा है, उसने फिर दूसरी बार उससे पूछा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? तू क्या मुझसे प्रेम रखता है? वो हालात देख रहा है, तू मछली पकड़ने चला गया, तूने मेरा 3 बार इनकार कर दिया, अरे क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने उनसे कहा, हां प्रभु, तू तो जानता ही है मैं तुझसे प्रीत रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। आपके खानदान में आपके लोग होंगे, रखवाली कीजिए। फिर 17 पद में लिखा है, जब उसने तीसरी बार उससे कहा, ए शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? मतलब कुछ संजीदगी दिखाई पड़ रही है, कुछ खास बात है जो खुदावंद यीशु मसीह उस समय पतरस से और आज के दिन आपसे कहना चाहता, क्या तू हकीकत में मुझसे मोहब्बत रखता है? पतरस उदास हुआ, पतरस बड़बोला, पतरस बड़ी बड़ी बात करने वाला, पतरस डींग मार पतरस। आज अपने नाम को पतरस की जगह जोड़ लीजिए और कहिए जोरदार आवाज में, मैं डींग मार हूं, मैं बड़बोला हूं, मैंने खुदावंद की बातों को जैसा उसको मानना चाहिए एतबार नहीं किया। पतरस उदास हुआ। आप भी उदास हो जाइए, थोड़ी देर के लिए उदास हो जाइए और कहिए, उसने तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। पतरस ने कहा, तू तो सब कुछ जानता है, दिलगीर। अब सही रास्ते पर आ गया, अब सही जगह पर आ गया, दिलगीर हो गया, टूट गया हृदय। आज यही टूटना चाहता है खुदा, तोड़ना चाहता है हमको और आपको। अगर आज तक नहीं टूटा हृदय, आज तक जिंदगी नहीं टूटी, तोड़ दीजिए। घमंड की दुनिया से बाहर आ जाइए, बूस्टिंग की दुनिया से बाहर आ जाइए, जिंदगी की दिखावटी मुखौटे से बाहर आ जाइए। क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू जानता है, अब तू समझ गया है, मेरी बातें जैसी थी वैसा मैं नहीं हूं, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीत रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। समझ गया, अब समझ में आया। जब तक हम ग्रेटफुल नहीं होंगे, जब तक हम थैंकफुल नहीं होंगे, जब तक अपने बड़बोलेपन को त्याग नहीं देंगे, तब तक यीशु के लायक नहीं बन सकते। खुदावंद यीशु मसीह का इनकार 3 बार किया। मुर्ग बांग न देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार न कर ले। खुदावंद यीशु मसीह ने 3 बार उसको तोड़ के रख दिया। क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? और जब वो नम्रता और दीनता की हालत में खुदावंद यीशु मसीह के पास आया, आपको मालूम होना चाहिए, उसके बाद पतरस ने पलट कर नहीं देखा, उसके बाद पतरस ने मुड़ कर नहीं देखा, खिदमत करता रहा, खिदमत करता रहा, जान देने तक वफादार रहा। मसीही लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु पर ईमान रखो। इस दुख भरे संसार के अंदर पीड़ाएं तो वैसे ही हैं, ये तो कोविड-19 आज आया है, पीड़ाएं और दुख और परेशानियों में जिंदगी गुजार रहे थे, फिर भी यीशु को नहीं जाना, फिर भी यीशु मसीह को जानकर भी अनजाना ठहरा दिया। आज यीशु के चरणों पर आकर उसको उसके साथ रहने का वायदा कीजिए। स्टे विद जीसस, स्टे विद जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के साथ बने रहिए। वो आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं आपसे अगले एपिसोड्स के माध्यम से बातचीत करूंगा। खुदावंद आने वाले समय के अंदर कौन सी बातों का ऐलान करना चाहता है हमारी और आपकी जिंदगी की उन्नति के लिए। लेकिन इन दिनों के अंदर जब आप अपने घरों के अंदर हैं, आपकी शांति की दुआ करूंगा,
ताकि आप अपनी जिंदगी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की, परमेश्वर की शांति को प्राप्त करें। खुदा आपके खाने, आपके रहने, आपके कपड़े, हर एक की चिंता करता है, हर एक चीज की चिंता करता है। मत फकर कीजिएगा मेरे बैंक में बहुत पैसा है, मत फकर कीजिएगा मेरी तिजोरी के अंदर बहुत पैसा है। सिर्फ इस बात पे फक्र कीजिएगा, मैं यीशु को जानता हूं और यीशु मुझे जानता है। आइए दुआ करें। जिंदा और जलाली खुदाम यीशु मसीह, हम तेरे हाथ में अपने तमाम अजीजों को, बीमारी से ग्रस्त लोगों को, सेविकाई में लगे हुए लोगों को, इस देश के तमाम आला मुकाम पर स्थापित लोगों को, दुनिया के तमाम आला स्थान पर स्थापित लोगों को, दुनिया के तमाम उन लोगों को जो इस बीमारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, अपनी ही कमजोरी, अपनी ही गैर शुक्रगुजारी के सबब से, हम खुदावंद यीशु मसीह उनको तेरे हाथों में देते हैं और यही चाहते हैं खुदा बाप, उनको संभाले रहना, अपने प्यार में बनाए रखना। जब तू बहुत शीघ्र आने वाला है, तेरी बातें हाँ और आमीन के साथ कलाम के मुताबिक पूरी हो रही है कि अंत के समय में महामारियां आएंगी, देश प्रदेश चढ़ाई करेंगे, आसमान में तुम भिन्न भिन्न किस्म के चिन्ह देखोगे। ऐ बाप, हमको ये तौफीक बख्श दे कि हम और ज्यादा तेरे साथ जिंदगी गुजारने वाले हो। हमारी मदद कीजिए, सबकी मदद कीजिए, सबको आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हमारे खुदाम यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत और इफाकत हम में से हर एक शख्स के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, टेलीफोन कीजिएगा 051225700108। हमारे प्रार्थना योद्धा और हम खुद यहां पर मौजूद होकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए दरख्वास्त करेंगे। खुदाम यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर शांति दे। ये असेंबली बिलीवर चर्च पन की है और एबीसी प्रेयर सेंटर के माध्यम से हम आपकी सेवा करते हैं। गॉड ब्लेस यू।